So today I am taking you to the chapter 9 of history. So we will be doing the revision of the history today. Okay, so let's proceed. Okay, so I guess सबको history बहुत boring लगती है, सबको history में बहुत ही problem रहती है ना? But today, No, ma'am. no ma'am, it's interesting. You find it interesting? Yes, That's ma'am. That's great. That's great. I just loved it, huh? I just loved it. So, okay, then with all the cherishment and with all the happiness, we are now we are starting the chapter 9 revision. Okay, I am only, I'm only giving you the concept. I'll explain you the concept, and you just have to remember it. And how to remember it, I will explain you. I have made some quick notes, some short notes, and you need to revise that to make your answer, because it is really difficult sometimes for students to make answer. And yes, students, please keep your registers with you and keep noting it. Okay, let's start. So that was the era of 1885. That was the era of 1885 and Indian National Congress, because we were suppressed by British ईस्ट इंडिया कंपनी, वी वर सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, हम बहुत सप्रेस थे गाइस ब्रिटिशर्स के अंडर। और उसी टाइम पर, बिकॉज यू नो ना, आपने सेवेंथ में भी पढ़ा है एंड देन एट्थ में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वो कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कुछ पॉजिटिव भी है, some positives are also there and some negatives are also there, right? So because of our disunity between the Hindus and Muslims, Britishers were suppressed us, है ना? और यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं 1885 की। सो यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। The Indian National Congress was established in December 1885. कब बनी? दिसंबर में, क्रिसमस के आसपास, 1885. So we just need to remember this one date, that is 1885. Okay, children? Okay, and around 72 delegates attended the first meeting of the Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग हुई ना, ऑलमोस्ट 72 people, 72 delegates attended that. ठीक है, चलो। So there are two things. Indian National Congress in 1885, it established in 1885, and second thing, 72 delegates attended this meeting, the very first meeting. जैसे आज हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई है और हमारे यहाँ पे भी कुछ डेलीगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। ठीक है, चलो। तो एक बार मैं बता देती हूँ, अपना रजिस्टर निकाल लो, यू हैव टू नोट इट। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का टाइम था, द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री, वी वर सप्रेस्ड by the Britishers, the East India Company, and in that era, in 1885, the Indian National Congress was established, the first political party of our country. Okay, and around 72 delegates attended the first meeting. And meeting हुई कहाँ पर थी? अब देखो, बहुत सारी फालतू बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड हुई 1885 में, दिसंबर में। फर्स्ट मीटिंग में कितने लोग आए थे? फर्स्ट मीटिंग में 72 डेलीगेट्स वर देयर, एंड दिस मीटिंग हेल्ड इन बॉम्बे। ओके, अभी का मुंबई, तब का बॉम्बे, वी हैव टू यूज दैट टर्म, नॉट मुंबई, we'll use Bombay. Okay, and the last thing is, the early important leaders were Dada Bhai Naroji, okay, Firoz Shah Mehta, Ramesh Chandra Dutt and Subramanya Iyer. Okay, I will, अभी इसको याद नहीं भी हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं आगे याद कराऊंगी। अभी जस्ट आपको तीन चीजें याद करनी है। 1885 दिसंबर, the first political party of our country, Indian National Congress, 72 delegates attended the first meeting held in Bombay. That's it. Okay. Yes, ma'am. So some student, Digvijay asked me that, ma'am, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी? नो बेटा, इट वाज फाउंडेड बाय अलान ऑक्टेवियन।
ठीक है, अलान ऑक्टेवियन ने इसको ढूंढा था। एंड नाउ द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ इस तरीके के डेलीगेट्स थे, कुछ इस तरीके की पार्टी बनी थी, दैट इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आवर नेशन। ठीक है, आज भी है हमारे पास, आज भी है हमारे पास, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन है, जल्दी से बताओ ये कौन है? दादाभाई नौरोजी। ठीक है, इनको एकदम ध्यान से देखना क्योंकि आजकल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं गाइस। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर द फेसेस एंड some sort of questions may asked in your examinations. So Dadabhai Naoroji, he is Dadabhai Naoroji, he is Surendra Nath Banerjee, SN Banerjee. Who is Surendra Nath Banerjee, freedom fighter. These all are the early leaders and the freedom fighters of our country. Who is he? ये कौन है टोपी वाले? देखो दोनों ने टोपी पहन रखी है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, और इनके नाम पे कोई स्टेडियम भी है। यस, ओके, ठीक है। सो इसके बाद किसका फेस दिखा दिया आपको? इसके बाद आप बी आर अम्बेडकर, पिटाई करूंगी, पिटाई। रोमेश चंद्र दत्त। किसी ने भी चश्मा पहना होगा तो आप लोग उसको बी आर अम्बेडकर बना देंगे। अब आप बोलेंगे डालिका मैम भी बी आर अम्बेडकर है थोड़ी थोड़ी देर में। हाँ, नो गाइस, ठीक है। सो दादाभाई नौरोजी, ही लुक्स लाइक दिस, एस एन बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता एंड रोमेश चंद्र दत्त। ओके, रोमेश चंद्र दत्त। हाँ, वैसे he resembles, he is resembling Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, but he is not Ambedkar, बेटा। ठीक है, who is that person? अब रविंद्रनाथ टैगोर मत बोलना, because he resembles रविंद्रनाथ टैगोर, वोमेश चंद्र। वैसे चंद्र बोलते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम लोग चंद्र बोल सकते हैं, बट इनका जो स्पेलिंग होगा वो है CHUNDR। ठीक है, बैनर्जी, ये बैनर्जी है लेकिन इनका स्पेलिंग जो है विकिपीडिया से लेके हर जगह पर, क्योंकि उस टाइम पे बंगाली ऐसे एक्सेंट कैसा होता है, बॉनर्जी एंड लाइक थिंग्स लाइक दैट, सो दैट इज व्हाई वोमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, चलो अब हो गया चेहरा याद सबका। दादाभाई नौरोजी, SN बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, वो एक रोमेश है, एक वोमेश है। ठीक है, रोमेश की दाढ़ी नहीं है, वोमेश की दाढ़ी है। ठीक है, ओके, चल हो गया याद अच्छे से। अब पता चल गया that he is not बाबा साहेब, he is not भीमराव अंबेडकर। I hope that's clear now. चलो एक बार फिर से देख लो चेहरा, because nobody knows, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके, let's see दादाभाई, let's see SN बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ओके, रोमेश चंद्र बैनर्जी और रोमेश चंद्र दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। Okay, and the last one is Vomesh Chandra Banerjee. I hope it's clear to you all. First, you just go with the concepts, and then I will explain you each and everything. Okay, don't worry. You'll get each and everything. You'll get every notes, handouts, everything you are going to get. But first, you just need to go with the concepts. Otherwise, if I'll only answering you, then other students I will get bored. So let's just focus on this first. Okay, beta? Okay. Later on, you can ask me as many as question you want. Okay. First, only go with the concept. चलो, अब मुझे वापस से जल्दी से बता दो, Indian National Congress was the that party of the country. First political party. Okay, political नहीं बोलना है, political party. कब बनी थी? जल्दी से 1885, December 1885. Month. December. Very nice. And first meeting held at Bombay. Very nice. How many dash attended the first meeting? 72. What 72? 72 Delegates. delegates. Very nice. I want to give you a round of applause. अब now how many leaders were there? How many early leaders? 5 leaders के हमको नाम याद होने चाहिए। इधर मेरी भी फोटो आ रही है, मेरा नाम मत लेना। हाँ, चलो अच्छा बताओ, फर्स्ट पर्सन इज दादाभाई नौरोजी। ठीक है, सेकंड SN का फुल फॉर्म सुरेंद्र नाथ। ओके, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। थर्ड वन इज फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता।
और रोमेश चंद्रपाल। रोम करने गए थे चंद्र पे, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है, क्या करने गए थे संजय दत्त के साथ, रोम करने गए थे चंद्र पे, सो हिज नेम इज रोमेश चंद्र दत्त एंड नाउ वी आर गोइंग टू वोमेश। रोमेश को देखिए, वोमेश भी चल रहा है, ठीक है, वोमेश चंद्र बैनर्जी। लेकिन स्पेलिंग यू नीड टू रिमेंबर द spelling very carefully, and while you are writing you need to just focus on the spellings. So I hope that's clear. You have noted down? नोट हो गया सबका? चलो जल्दी से नोट करो, बिल्कुल अच्छे से स्पेलिंग को, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई डोंट वांट कि टीचर को आप लोगों के 1 मार्क भी डिडक्ट करने का चांस मिले, ठीक है। सो एनीवे वी शुड नॉट गिव chance to our teachers to deduct our even a single mark, okay? So just you need to focus on the spellings very carefully. दादा, मिस्टर दादा, भाई, नरोजी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, NAROJI लिख देते हैं, ओ बीच का खा जाते हैं, ठीक है। सो NAOROJI, नराओजी, ओके, SN बैनर्जी। बैनर्जी की स्पेलिंग में बहुत बच्चों से गलती होती है, they keep on doing mistakes while writing Banerjee, so you need to very particular about this. Firoz Shah Mehta, because we are reading history, because we are learning history and there are so many interesting facts. हम कुछ तो हमारी मूवीज होती हैं जो जो फिक्शन वर्क होती हैं, but this is the real history, these are the real events, real mysteries, so that is why यहाँ पे हमको बहुत important है ठीक से पढ़ना, ठीक है। स्पेलिंग्स वोमेश, ठीक है, नीचे चलो दिख रहा है आप लोगों को? I hope it's clear. Shall I proceed? Yes or no? With all the energy, you should proceed now. Okay, चलो ये हो गया अच्छे से यार, हो गया, चलो। अब आता है हमारे पास हमारे कुछ लीडर्स हैं, पर ये लीडर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। सो सम लीडर्स, सम इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये लोग कौन थे? आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछले उसमें हेडिंग नहीं डाली थी, वो किस लिए नहीं डाली थी? ताकि मैं आपको समझा सकूं दैट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, some important leaders of the Indian National Congress. दादा भाई, फिरोज शाह, वोमेश, रोमेश एंड SN बैनर्जी, ओके। अपने दोस्तों की तरह इनके नाम याद रखो, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या सोचना है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हम खुशी से पढ़ाई करें, ठीक है। वी शुड स्टडी विद ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द एंथुसियाज्म, तो हमको इजी हो जाएगा पढ़, ठीक है। मैंने इनको अपने फ्रेंड्स की तरह नाम याद कर रखा है, पर ये एक्चुअली में है नहीं, दीज आर द लीडर्स, ओके। चलो अब यहाँ पे बात आती है, चलो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अब आप लोगों को ये सब बात पता है दैट वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, वी वर बैडली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश पीपल ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे वर डिवाइडेड अस, दे वर रूलिंग अस, ओके। एंड एट दैट डिफिकल्ट टाइम, इन दोज डिफिकल्ट टाइम्स, वी एस्टैब्लिश्ड अ political party, that is, what is that? Indian National Congress. Very good. And now we will study and now we will understand कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या डिमांड थी। अब देखो कुछ एस्टैब्लिश हुआ है तो कोई ना कोई पर्पस होगा ना, देयर शुड बी अ पर्पस कि क्यों ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों एस्टैब्लिश किया गया? एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस wish to speak for, what did they wish to speak for, वो किस बात के लिए क्या बात बोलना चाहते थे, ठीक है, क्या चाहते थे वो लोग। चलो लेट्स सी वो लोग क्या चाहते थे। सो वो लोग क्या चाहते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस wish to speak about certain things. First thing is, second thing is, third thing is, fourth thing is, and fifth thing is, and now it is very easy for you to learn and to remember and to retain, okay. In this way we need to revise the course, we need to revise the chapter, and you don't have to put your hard work for that because I have already done that. You just need to revise it, learn it, and then write it once or twice, okay. Chalo, the National Congress wish to speak for well-being of the countrymen.
What they wanted कि इंडिया के लोगों को भी क्या बनाया जाए, पार्ट बनाया जाए डिसीजन मेकिंग का, because we were not the part of the decision making. Britishers were taking all the decisions for us, and that is not done according to our leaders. Okay guys, so well-being of the countrymen. Second बात उन्होंने क्या बोली, हमें क्या चाहिए, legislative council. Legislative council मतलब ऐसे काउंसिल जो कि हमारे कंट्रीमेन के लिए लॉ बनाए, द काउंसिल्स व्हिच विल मेक द लॉ फॉर द कंट्री एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन पीपल इन दैट. ठीक है, इंडियन लोगों के पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए आपको, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर always there, because they were making all the laws and we were only following it, right? But now they wanted, our people wanted कि हम भी able हैं, we are able to make our things. So legislative council. Third thing is government and administration. अब गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में किसका पार्टिसिपेशन चाहते थे, इंडियंस का. ठीक है, इंडियंस आर दी वेल-बीइंग ऑफ द countrymen. Okay, and they wanted participation in the legislative council, participation in the government and administration. Arms Act को क्या किया जाए, yes, इंडियंस को क्या किया जाए आर्म्स एक्ट करने से, मतलब व्हाट वाज आर्म्स एक्ट, अब पहले ये समझ लेते. ठीक है, व्हाट वाज आर्म्स एक्ट, मैंने Indian from possessing in arms. ओके वेरी गुड. यहाँ पे क्या बोला गया, वापस से बताइए मुझे कि आर्म्स एक्ट क्या होता है. कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता सकते हो आर्म्स एक्ट क्या होता है, बिकॉज आई नीड टू लिसन योर वर्जन एंड देन आई विल टेल यू माय वर्जन. एनीवन I can answer. व्हाट इज योर नेम, आरव? Yes, ma'am. Yes, please go ahead, Arav. Yes, ma'am. So the Arms Act is basically an act passed by the British to prevent Indians from holding any arms, such as like guns or any other weapons. Is that okay with you? If you were there at that time, तो क्या आपके लिए ये okay थी ये बात? That was okay with us? No, ma'am. No. So they wanted कि Indians इसमें participate करें. Very good, Arav. ठीक है. And then next one is freedom of speech and expression. And Indian leaders wanted what? The freedom of speech and expression. Got it? चलो अब 2 minutes you have. 2 minutes, only 2 minutes. ठीक है, मैगी बनाने से भी कम टाइम में हमको ये रिवाइज करना है. ठीक है, while you are writing, keep reading it, keep revising it. Well-being of the countrymen. What we are looking for, what we are studying. We are studying about the Indian National Congress. What they wanted to, what did they want, what did they wish for. Okay, well-being of the countrymen, legislative councils, government and administration, Arms Act, freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. So these 5 things you need to revise and remember. Okay, guys? What happened? Any problem? What is this AOU? आपने तो बोला Ellen Octavian Hugh. He founded the Indian National Congress. मैं बता दूंगी स्पेलिंग, डोंट वरी, यू विल गेट इन माय नोट्स. ठीक है, डोंट वरी. इतना एनसीईआरटी में इतना कलरफुल बनाने की दैट इज नॉट नीडेड. Okay, because there are many things in that, right? But this is the sorted form, you know. If you learn from this, you'll get the sorted thing and you'll learn the sorted thing. आप जितना sort रहोगे उतना ही आप sort पढ़ोगे और उतना ही sort आप लिखोगे. So that is my concern. Otherwise, I could, you know, open the NCERT book and then मैं उसी में से पढ़ा सकती थी, but that is not fine with me. Done? Everyone done? Thumbs up? Yes, ma'am. Thumbs up? Okay, very nice. Okay, चलिए, let's move. अब ये जो है, अब समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आ जाता है. ठीक है, लेकिन अब हमारे जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम हम इतना बड़ा आंसर कैसे लिखें, हाउ वी लर्न दिस, क्या हमें लिखना नहीं आ रहा. वी नो द कॉन्सेप्ट बट वी डोंट नो हाउ टू राइट इट. सो दैट इज द प्रॉब्लम. और फिर याद नहीं रहता कि क्या लिखना था. सो गाइज, व्हेनेवर दैट प्रॉब्लम कम्स कि हमको ये नहीं पता होता कि हमको क्या लिखना है,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द बेसिक थिंग। अब मुझे नहीं पता, अब ये क्वेश्चन आ गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या विश थी। अब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी कि ऐसा भी चाहते थे, वैसा भी चाहते थे, दे वांटेड टू डू दैट, दे वांटेड टू दैट, दोस सब आएगा मेरे दिमाग में, लेकिन मैं आंसर को लिखूं कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर उस आंसर को रिटेन करने के लिए, उस आंसर को प्रेजेंट करने के लिए हमें ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। एंड देन अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ पे आप लोग बहुत इजीली इसको यू कैन मेक थिंग्स ऑन योर ओन नाउ, बिकॉज इफ यू नो दोस 5 बुलेट पॉइंट्स देन यू कैन इजीली रिमेंबर दैट एंड यू कैन मेक आंसर्स ऑन योर ओन। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से रीड आउट करेंगे। इंडिया, आप लोग रीड करेंगे, इंडिया एंड द वेल बीइंग ऑफ द कंट्रीमैन। सेकंड, it demanded a greater voice for Indians in the government and administration. Okay, third one. It wanted the legislative councils to be vested with more power. Very Indians nice. to be placed in high positions in the government. Very good. Indianization of the Indianization and administration against racism. Racism के against भी वो आप आवाज उठाना चाहते थे, so you can add one more point against racism. Okay, to reduce the drain of wealth to England, and last one is The repeal of the Arms Act. Okay, very good. So अगर हमको देखो बेटा, I hope अब आपको मेरा concept समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि if we remember these 5 words, only these 5 things, तो we can easily make our answer. ठीक है, so that is more important while you are writing your answer. तो इन 5 पॉइंट को ध्यान रखना जरूरी है, and then you can easily make your answer. So now it's clear. Now it's clear. अब आप लोग लिख देंगे पॉइंट्स। अब कुछ डर तो नहीं लग रहा इस पॉइंट से, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है। We have already done this, that India and the well-being of the countrymen. It demanded a greater voice for the Indians in the government and administration, wanted legislative council. This is all clear. पक्का? 2 minutes you want to revise it. जल्दी से रिवाइज कीजिए। मैं क्लास के एंड में किसी भी स्टूडेंट से सुन सकती हूँ। ठीक है, I'll ask anyone. I can ask anyone. ठीक है, I have all the authority. किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ। ओके, जल्दी से लिखिए। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। एक ही चीज सब में लिख देंगे, एक ही चीज पूरे में लिख देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, और वो डेट्स के साथ आएगा, तो इसीलिए अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, so this is the question guys. This question, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। Who did the Indian National Congress wish to speak for? Yeah, what did the Indian National Congress wish to speak for? India and the well-being of the countrymen. While writing, लिखते टाइम इसको रीड करिए। What is the meaning of vested? Vested means किसी के अंदर इंसर्टेड या फिर उसके अंदर छुपा होना। जैसे कि इसका मतलब है इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी वेस्टेड विद मोर पावर, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ज्यादा पावर मिल जाएगा। ठीक है, वेस्टेड मींस जिसका इन्वेस्टेड या वेस्टेड का। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद माय चिल्ड्रन दैट दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग, और वो लोग लिख रहे हैं, लोग रिवाइज कर रहे हैं, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। वेरी नाइस गाइस, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। और एक बात आपको बता दूं, मैं जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं कुछ नहीं छोड़ती। ठीक है, मैं क्लास में चैप्टर के साथ साथ आपको क्या भी बता देती हूँ, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बता देती हूँ। सो whenever you are with me, then you need not to worry about your important questions. मैं ऐसा नहीं करती कि पूरा चैप्टर पढ़ा दिया फिर क्वेश्चन आंसर्स कराए और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराए, ये वो। आई डोंट डू दोज थिंग्स। आई ओनली विश कि मैं एक चैप्टर भी पढ़ा दूं प्लस मैं उसी के साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ओके, तो आई होप ये ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट होगा। तो अब आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना। वेरी गुड। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हाट डिड दे स्पीक फॉर। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। चलो जल्दी से लिखो, अभी आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जल्दी। ओनली थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास। और एनसीईआरटी देख के घबराओ मत,
ठीक है, मुझे पर याद है मुझे। वेरी गुड। अच्छा याद है, अच्छा अब तो लास्ट टाइम होंगे ना, अब तो रिवाइज करें तो याद होना भी चाहिए। वेरी गुड। Done, done, done. Yes, ma'am. Fifth one, Indianization and Indianization of the administration. Indianization का मतलब क्या है? Indian people. The participation of Indian people. It means Indian Indianization. Indianization. Indian word आ गया तो the participation of Indian people. Then, ma'am, what did D.R. Ambedkar do for it? Yeah, he had done many things for that. ठीक है, in the 9th class, in the 10th class, you are going to study that. Don't worry. It's a very, interesting things what they did for us. He had And- done double PhD. He has almost 35 or 36 degrees, right? So He has double PhD. yeah, he's Ma'am, double I can't PhD. see. Can you get aside a little bit? Okay, sure. Now we can see that. Learn it, guys. Learn it properly. This is the important question. Indian National Congress, what did they wish to speak for? This is the very important question. Well-being of the countrymen, government and administration, legislative councils, high positions in the government of Indians, Indianization and of the administration. Okay, against racism. Racism means to come on guys, what is racism? Ma'am, to Racism judge क्या someone for his skin color, ma'am, or race, gender. Very good. On the basis of on the basis of color, on the basis of skin color, किसी को भी किसी के साथ भी religion नहीं, color. Okay? Discriminate. क्या करना? Very good. Discriminate करना. To discriminate someone on the basis of his or her skin color. Very good. That is called racism. I hope guys you have done this. Now shall I proceed? Online? Thumbs up. चलो, now I'm moving towards the next concept. अब हम चलते हैं. Why were people dissatisfied with the British rule? Okay, Indian National Congress was established. Okay, that's fine. What did this wish to speak for? That is done. Now my next question is that हमें ब्रिटिश पीपल से, हमें ब्रिटिश लोगों से क्या शिकायतें थी? ब्रिटिश रूल से why people were not satisfied. ठीक है, चलो तो फटाफट देख ले. फर्स्ट पॉइंट इज आर्म्स एक्ट. बिकॉज ऑफ आर्म्स एक्ट पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल. सेकेंड थिंग, इस तरीके से लोगों के मुंह पे और आंखों पे ताला लगा दिया गया था, बंद कर दिया गया था सब कुछ अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. ओके, अभी बताएंगे व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. एंड द थिंग इज, क्या किया लोगों ने? रेसिज्म. और लोग रेसिज्म से बहुत परेशान थे. सो दैट इज व्हाई पीपल वर हाईली डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल. डन. तो दीस थ्री थिंग्स, ये पिक्चर्स एकदम अपने दिमाग में, अपने दिल में बसा लो गाइस. Okay, Arms Act, Vernacular Press Act and racism. That is why the Indians were highly dissatisfied with the British rule. Got it? Got it. चलो अब आगे इसी को आंसर में फटाफट लिख लेते हैं. फटाफट आंसर लिख लेते हैं. The Arms Act was passed in 1878. When did Indian National Congress was established? When did Indian National Congress 1885. after how many years? 1885 minus ठीक है. अब हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने टाइम पहले जो था आर्म्स एक्ट को पास किया गया था. तो आर्म्स एक्ट वाज पास इन 1878. After 7 years. After 7 years. So Indian National Congress पहले बना था कि प्रेस आर्म्स एक्ट? Indian National Congress. अरे क्या हो गया तुम लोगों को? पहले आर्म्स एक्ट. आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878. ओके, एंड 1885 आफ्टर दैट है ना बेटा, आफ्टर दैट. ठीक है, आफ्टर 7 years इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म. नो इश्यूज, ऐसे ही हमको याद रहेगा. अगर हम किसी चीज पर डिबेट कर देना
हमें याद करने में बहुत इजी हो जाता है. So 1885 was the date when Indian National Congress was established, and before 7 years in 1878 the Arms Act was passed and banning Indians from keeping arms. हम लोगों को आर्म्स रखने का कोई भी हम लोगों को परमिशन नहीं है. ठीक है, सो दैट इज वेरी रॉन्ग यार. आप लोग रख सकते हो, हम लोग नहीं रख सकते, तो गलत है. सो दैट इज व्हाई पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल. अब सेकंड चीज क्या आती है हमारे पास? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. अब वर्नाकुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नाकुलर? वर्नाकुलर मीन लोकल. ओके, वर्नाकुलर मीन्स लोकल. वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल. ठीक है, वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल. लोकल लैंग्वेज, जैसे असम में असमीज बोली जाती है, दैट इज द लोकल लैंग्वेज. ठीक है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज. बिहार में बिहारी बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज. तो उस लोकल लैंग्वेज में अगर कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट करता है तो उसको बैन कर दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया. The magistrate or the commissioner has the power and the authority to ban, I think. Yes, he has the authority. He had the authority to ban that. और उसके बाद क्या होता था? हमारे जो इंडियंस थे, ठीक है, जो अपने लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स और इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना चाहते थे, उनको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. So we are only, Yes, under the British rule कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या जानना है. For that also we are dependent on Britishers. So I hope you have understood the Vernacular Press Act was also passed in. अरे वाह, दो डेट याद तो करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही डेट में काम हो गया. 1878 आर्म्स एक्ट भी पास हुआ था 1878, एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कब पास हुआ था? 1878, to suppress those who were critical of the government. That was passed by the East India Company, the British rule, Britishers. That was passed by the Britishers, and to suppress those who used to write against the government. जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते थे उनको सप्रेस करने के लिए ये प्रेस एक्ट को पास किया गया. एंड लेट मी टेल यू, बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर छापा था और उसका नाम था केसरी. ठीक है, दैट नेम वाज केसरी, और उनको उठा के जेल में डाल दिया था अंडर दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. So Bal Gangadhar Tilak was arrested because he founded or printed the vernacular newspaper Kesari. For that, under the Vernacular Press Act, he was jailed. ठीक है, so I hope it's clear. Vernacular Press Act आते ही आपको बाल गंगाधर तिलक का नाम याद आ जाना चाहिए और केसरी का नाम याद आना. ठीक है, केसरी. I hope it's clear now. And next one is this press. The press was in a way censored if the newspaper published anything that was founded objectionable. अब ये तो वही बात हो गई guys. If you are not getting my point, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो क्या कर दो? आपको जेल में डाल दो. जेल में डाल दो? नहीं, ठीक है. तो अगर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी लिख रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, एनीथिंग विच दे वर पब्लिशिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो वो क्या बोल देते थे? ये ऑब्जेक्शनेबल है, इसको सेंसर कर दो, इसको हटा दो, उस न्यूज़पेपर से उसको एकदम हटा दो, इस कॉलम को हटा दो. यस बेटा, What does infuriated mean? अभी बताएंगे बेटा. दिस यहाँ से ना, अभी ओके. ये हो गया ऑब्जेक्शनेबल. ऐसे बोल देंगे इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, दिस हैज समथिंग रॉन्ग, सो दैट इज द ऑब्जेक्शनेबल थिंग, सो सेंसर इट, हटा दो इसको. ठीक है, इसको लिखना ही नहीं. देखो कितने चालाक थे ब्रिटिशर. whenever somebody is writing something against the Britishers, they told it as a objectionable thing and they used to censor it. Okay, चल. And the last point is all the Indian organization. तो ये वही बात हो गई. कौन सी बात हो गई? तुम्हारा कुत्ता नहीं, हमारा कुत्ता, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ठीक है, ऐसी बात हो गई. तो वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते. चलो, एनीवे देखो, एंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस वाज लैकिंग. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी गाइस इंडियंस में, दैट दे वर लैकिंग एजुकेशन. इसीलिए कहते हैं पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडियंस वर लैकिंग एजुकेशन.
सो यहाँ पे इसी चीज का फायदा उठाया गया. ब्रिटिशर्स took the advantage of it, took the benefit of it. ठीक है. People were highly infuriated by the racial attitude of the British in India. अब मैंने यहाँ पे बताया कि इंडियंस में थोड़ी सी ये कमी थी कि they were lacking education, पर वो बहुत ज्यादा infuriated थे, मतलब कि बहुत ज्यादा agitated थे, गुस्सा थे, नाराज थे, परेशान थे because of the racial attitude of the British. Because they used to do what? They used to discriminate people on the basis of the color. Skin color. Skin color. Okay? चलो तेरे को नहीं करते. if you were there at that time, so safe रहे. ठीक है? Okay, that is done. Yes. चलो, so I hope that is much better कि अब अच्छे से समझ में आ गया है कि why the people dissatisfied with the British rule in 1870s and 1880s. Okay, तो 70s और 80s के बीच का जो भी डेट था guys, only one date was there, only 1 year was there, 1878, and that is done. Okay guys, so यहाँ पे रेसिज्म की बात करी मैंने आपके साथ. यहाँ पे मैंने बताया कुछ भी उल्टा लिखा हो जाता तो ऑब्जेक्शनेबल बोल के उसको हटा देते थे, सेंसर कर. So you need to use this term guys, that is censor. अब देखो, जब मैं आप लोगों की क्लास में हुआ करती थी ना, तो मैं क्या किया करती थी, जब मेरे को आंसर इस तरीके से रिवाइज हो जाता था, सो आई यूज्ड टू राइट इट. ठीक है, मैं एक बार लिख के देखती. आप मुझे बताओ ब्रिटिशर्स से इंडियंस क्यों परेशान थे, व्हाई दे वर डिससैटिस्फाइड. तो पहली चीज बताओ मुझे. Fast. The arms act was. Ma'am, the Arms Act. अरे छोड़ो ना, इतना लंबा लंबा क्यों करना है, अभी तो बस एक एक पॉइंट बता दो ना. इतना बड़ा तो तुम लोग आंसर में लिख लोगे. आई नो व्हेन इट कम्स टू अ टेस्ट पेपर और व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, देन दैट you will write, but when it comes to revision you need much time to revise things, and you cannot you cannot speak like, or you cannot learn like a parrot. You can't cram like a parrot, so that time you need a simple thing in your mind. Keep it simple, silly wala हाल है, ठीक है. So keep it simple guys. First thing is ask that. Second thing, Vernacular. vernacular, ठीक है. vernacular, ठीक है. ना वर है ना कूलर, ठीक है. ना वर है Racism. ना कूलर. अब मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी है बेटा, ठीक है. ना वर है ना कूलर, ठीक है. vernacular which at present. I hope it's clear. Vernacular, what is the meaning of vernacular? That means local language. ठीक है, local language कर लो, local language. ठीक है, to make you understand things. Third thing, censored. We can write objectionable only. Censored means उसको हटा देना. Censored means to remove it. Okay, but the practical term, the keyword is censor. You have to write it. अगर हटा दिया, लिख दिया, remove लिख दिया, तो ma'am may cut or deduct half marks for that. Okay, so censor. And next is objectionable. कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है. समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है. सो ऑब्जेक्शनल बोलकर, अगर कुछ भी उनके अगेंस्ट होता था तो ऑब्जेक्शनेबल बोलकर सेंसर कर देते. एंड लास्ट पॉइंट इज, यस बेटा, लास्ट पॉइंट क्या था. All India Organization of it. अरे यार तुम लोग क्या क्या चीजें बताते हो, सिंपल सा बताओ यार. रेसिज्म था मैम, बिकॉज people were dissatisfied because of the racism, because of the racial attitude of the Britishers. तो एक सिंपल वर्ड. तो हम लोग बेटा जब भी SST पढ़ते हैं, SST is not difficult at all, लेकिन हमको उसमें क्या करना होता है, we need to remember some key points, and that's okay. I am a teacher, I have been teaching since years, but still मुझे भी आप पूछोगे तो it's not necessary कि मुझे पूरा आंसर एकदम 10 पेज का आंसर याद हो. But the thing is that I can make answers on my own because I know the keywords. I know कि इसको remove नहीं बोलेंगे, इसको censor बोलेंगे, मुझे पता है इसको vernacular act बोलेंगे, ठीक है. So that is it. अच्छा आप मुझे बताओ कब पास हुआ, जल्दी. 1878. 1878. 78. वाह क्या बात है, छा गए बच्चे तुम, ठीक है. वेरी नाइस चिल्ड्रन, ठीक है. दैट इज इट. नाउ दिस वे यू हैव टू रिवाइज. अब बच्चे मुझसे कहते हैं मैम एसएसटी में ना हमको बहुत सारा लिखना पड़ता है. मैम इट्स रियली वेरी इरिटेटिंग व्हेन वी हैव टू राइट
like like anything we are writing and we are learning, but that is not true actually. You just need to write these points just this way, 5 points okay, is for Yes, ma'am. you can make your answer. Okay, thumbs up, okay, let's proceed now